Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily topic-wise news analysis where we cover the news from two important sources, that is the Hindu and Indian Express. So let's get started with the topic first. So these are the list of the topic for 3rd of September. So the first topic is Gopal Krishnan Committee. This is an important committee regarding which the controversy has been arising. Now the second topic is government banned Chinese mobile app, the recent decision taken by the government. The third topic is Mission Karma Yogi. This is regarding the revamping the civil services and other stuffs. Now the fourth topic is COVID-19 detection using the spectrometer. So this is a revolution which has come in terms of the COVID-19 testing. And the last topic is parliamentary committee conflicts and the parliamentary conventions. So this is regarding the Facebook dispute which has arisen, and the parliamentary committee has taken a cognizance of it, and they have asked the people to give their reply. The Facebook team would be reaching to the government. So these are some of the important topics for the day that I'll be discussing. Apart from this, we'll have some MCQs question at the end of this video and the explanation of yesterday question. तो कल के जो सवाल थे उसके correct options और explanation भी मैं आपको बताऊंगा. So stay tuned till end of this video. And those of you who are new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube, and do not forget to give a like button on this video. Now the first topic is from the Hindu. This is an editorial page, the Gopal Krishnan Committee. यहाँ पे बात की गई है किस तरह से जो गोपाल कृष्ण कमेटी की जो रिपोर्ट्स आई है वो बहुत ही ज़्यादा एडिक्वेट नहीं है गवर्नेंस फ्रेमवर्क को देख करके कॉमन डेटा सेट्स को देखते हुए, राइट. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जनरल स्टडीज पेपर 2. And a case study can be directly asked in general studies paper 4. So this is very important for the case study point of view. Case study में इस तरह के सवाल आपसे डायरेक्टली पूछे जाएंगे. बात करें प्रीलिम्स की तो कुछ हेयर एंड देयर पॉइंट्स ऐसे होंगे जो मैं आपको वहीं पे बता दूंगा कि कौन कौन से पॉइंट्स प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी हैं. तो रिसेंट में गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी. इन्फोसिस के जो को फाउंडर है गोपाल कृष्ण, उन्होंने इस कमेटी को हेड किया था. सो द कमेटी वाज फॉर द नॉन डेटा पर्सनल, जो नॉन पर्सनल डेटा है उसको रेकॉर्ड के. तो इन्होंने जो बातें कही हैं उसमें बहुत सारी बात ये आई है कि जो कमेटी के रिकमेंडेशंस है दैट वुड अलाउ टू बी हार्नेस द वेरियस डोमेस्टिक कंपनीज एंड एंटिटीज़, राइट. और जो कंट्रोवर्सी ये आई है कि अगर इस तरह की जो नॉन डेटा पर्सनल डेटा को अगर शेयर किया जाएगा तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है. आई टेल यू व्हाट एग्जैक्टली हैज़ हैपेंड. So committee has suggested that there should be a separate national legislation and separate authority to oversee the non-personal data. So the Gopal Krishnan committee ने recommend किया कि एक separate legislation बनाया जाए, देश में कानून बनाया जाए और एक separate authority बनाया जाए जो कि overlook करेगी इन सारी चीज़ों को, right? It also recommended कि जो sharing हो non-personal data की वो की जानी चाहिए with the entrepreneurships और टू डेवलप अ न्यू इनोवेशन सर्विसेज प्रोडक्ट टू बेनिफिट द सिटीजन. तो ये प्रॉब्लम है जो सबसे बड़ी अराइज हुई है क्योंकि आप किसी की जो डेटाज हैं, ठीक है, नॉन पर्सनल डेटा भी है, वो शेयर नहीं किए जाना चाहिए, राइट. सो द कंसर्न हैज़ बीन रेज्ड अबाउट द गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन द प्राइवेट डेटा इकोसिस्टम. व्हाई गवर्नमेंट इज इंटरफेयरिंग, या कि इस तरह के जो डेटाज हैं वो शेयर होने चाहिए. तो ये जो एडिटोरियल है ये इस डिसीजन के क्रिटिकली एनालाइज की गई है, राइट. इस जो गवर्नमेंट ने जो डिसीजन दिया, जो कमेटी ने जो डिसीजन दिया है गोपाल कृष्ण कमेटी ने, उसके कुछ पॉजिटिव साइड्स भी होंगे. जब आप एग्जामिनेशन में लिखेंगे तो पॉजिटिव साइड्स आप ये लिख सकते हैं कि एक सेपरेट लेजिस्लेशन बनाने की बात की गई है, एक ऐसे अथॉरिटी बनाने की बात की गई है जो इस सारे चीज़ों को ओवरसी करेगी. बट कुछ कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आपको नेगेटिव टर्म्स में भी देखने होंगे, राइट, अगर आप उसकी क्रिटिकल एनालिसिस करोगे तो. सो दोनों एंगल से आप समझने की कोशिश करें. तो जो गोपाल कृष्ण कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है, दिस इज नॉट एडिक्वेट एंड इट्स नॉट एड्रेसिंग द गवर्नमेंट फ्रेमवर्क अराउंड द गवर्नमेंट डेटा सेट्स. बात करें नॉन पर्सनल डेटा होती क्या है, क्या ऐसी चीज़ें जिसको नॉन पर्सनल की कैटेगरी में रखा जाता है, किसी भी तरह के फॉर्म ऑफ डेटा दैट डज नॉट कंटेन एनी पर्सनल आइडेंटिफेबल इन्फॉर्मेशन. किसी का आधार कार्ड, किसी का पैन नंबर, किसी के मोबाइल नंबर, किसी इस तरह की डेटा जो एक इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई ना करती हो, वो नॉन पर्सनल डेटा के कैटेगरी में आती है, राइट. दिस मीन दैट नो इंडिविजुअल और लिविंग पर्सन कैन बी आइडेंटिफाई बाय लुकिंग सच डेटा. मान लो आपने किसी का एज बता दिया, योर एज इज 42, तो उसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता. योर नेम, यू कैन नॉट आइडेंटिफाइड विद द नेम until unless you have आधार नंबर, पैन कार्ड और स्पेसिफिक नंबर which is mentioned, right. And non-personal data are viewed as critical for the development of AI ecosystem.
ये तो नॉन पर्सनल के बारे में बात थी। अब आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वाई डेटा शुड बी ओपन टू सिटीजन। क्यों ज़रूरी है कि ये जो सारी डेटा कलेक्ट की जाती है वो सिटीजन के जानकारी में होनी चाहिए। तो कुछ 5 रीज़न बताए हैं इसमें जो एडिटोरियल में, तो वो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि देयर आर 5 रीजन व्हाई दे शुड बी ओपन टू द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज दैट कि द स्टेट शुड बी ट्रांसपेरेंट अबाउट द इंफॉर्मेशन दैट इट हैज़ गैदर्ड। जो भी बेसिकली इंफॉर्मेशन स्टेट का मतलब है यहाँ पे गवर्नमेंट, राइट, ईदर इट कुड बी सेंट्रल गवर्नमेंट, ईदर इट कुड बी द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, राइट। तो जो भी इंफॉर्मेशन गैदर किए गए हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अभी आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जो आरोग्य सेतु ऐप थी उसको लेकर के काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई कि इसकी ओपन सोर्स नहीं है, राइट, इसकी ओपन सोर्स नहीं है, इस वजह से काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई। तो फिर बाद में गवर्नमेंट ने इसको पूरी तरह से ओपन सोर्स किया, राइट। नाउ इस तरह का जो मूव है इट विल इम्प्रूव द अकाउंटेबिलिटी। अगर आप ट्रांसपेरेंट बैनर में रखेंगे, पब्लिक डोमेन में चीज़ों को रखेंगे, इफ द पीपल आर अवेयर कि कहाँ उनके डेटा कैसे यूज़ हो रहे हैं, सो दे वुड बी अवेयर। अभी आप आधार को लिंक करते हैं पैन के साथ फॉर द इनकम टैक्स। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने कहा है कि किसी एक चीज़ को ही मैंडेटरी करना होगा इनकम टैक्स के साथ। तो यू आर अवेयर कि ठीक है, आपकी जो आधार कार्ड है या जो पैन कार्ड है, दोनों में से कोई एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में दी हुई है, राइट। सो इस तरह की चीज़ें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। And this is the one reason that the Right to Information Act 2005 mandate that the disclosure of government data on the suo motu basis। तो ये एक जो RTI की जो कोर एसेंस है उसको भी बरकरार रखना है, जीवित रखना है, राइट। Now the second most important point that has been highlighted why it should be made public. So the second would be कि अगर कोई taxpayer money है, if it has been funded to any other data sheet, there is an obligation for the state means यहाँ पे गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो स्टेट टू रिटर्न द फ्रूट्स ऑफ द फंडिंग ऑफ द टैक्स पेयर। जो भी पैसे जो हमने टैक्स दिए सरकार को, अगर सरकार उससे कोई चीज़, कुछ ऐसी पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रही है, कुछ ऐसी चीज़ें ला रही है, तो उसके सारे फायदे जो हैं वो सिटीजन के लिए होना चाहिए, राइट। उसके फायदे सिटीजन को, टैक्स पेयर को मिलना चाहिए, क्योंकि जो भी काम की गई है वो टैक्स पेयर के मनी से की गई है, राइट। तो थर्ड अगर मैं बताऊं क्यों ऐसी जरूरत है, 5 जो रीजन मैंने आपको बताया, दिस इज द थर्ड रीजन। सो बाय परमिटिंग द रीयूज ऑफ गवर्नमेंट डेटा सेट्स वी अवॉइड द नीड ऑफ डुप्लीकेशंस। जो डुप्लीकेशंस की जो प्रॉब्लम है वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। Now the fourth point is कि गवर्नमेंट की जो डेटा सेट है दैट इज करेक्टेड अकॉर्डिंग टू द public verified standard that can lead to increase in the confidence of data quality and increased uses के तरफ भी एक trust build करेगी। जो public trust है that is very important. And the last and the final would be कि जो free flow of information है that has a beneficial effect on the society in general। जो भी information होगी वो कहीं ना कहीं society के हित में होगी। that would be ultimately benefiting the society in large, right? So that should be the main motive of the government. तो बात करें one of the 9 pillar of digital policy is the information for all। ये बहुत ही important point है, quotation के तौर पे भी इसको आप ऐसे में यूज़ कर सकते हैं, right? तो जो 9th पिलर है हमारी डिजिटल इंडिया पॉलिसी की, वहाँ पे भी ये बातें कही गई हैं कि भाई साहब इंफॉर्मेशन फॉर ऑल होना चाहिए, राइट। दिस इज समथिंग विच हैज़ बीन ऑलरेडी एडवोकेटेड। नाउ फेलियर टू क्रिएट एन ओपन डेटा सोसाइटी की अगर बात करें, सरकार इसमें विफल रही है कि एक ओपन डेटा सोसाइटी बनाया जा सके। तो इसमें काफ़ी क्लैरिटी नहीं है, देयर इज अ लैक ऑफ क्लैरिटी कि जो प्रोविजन है नेशनल डेटा शेयरिंग एंड एसेसिबिलिटी पॉलिसी, जिसको NDSAP भी कहते हैं, कि उसमें जो रेलेवेंट इम्प्लीमेंटेशन है, जो गाइडलाइन है, दैट हैज़ नॉट बीन क्लियरली फॉलोड, और उसको लेकर के क्लैरिटी भी नहीं है गवर्नमेंट के पास। नाउ ये इनएबिलिटी है टू इन्फोर्स द गाइडलाइन इनएप्रोप्रिएटली, which means that the data sets जो रिलीज की जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से are often inconsistent होती है, वो काफ़ी incomplete है, outdated है, published in a non-machine and readable और inconsistent format। उसके साथ duplications की भी प्रॉब्लम है, जो मैंने आपको बताया, अगर इस तरह से शेयर किया जाए तो डुप्लीकेशन की प्रॉब्लम हट सकती है। and lack of quality mandate thereby reducing its reusability, राइट। तो ये रीयूजेबिलिटी बार बार हो रही है, बार बार एक ही चीज़ को डुप्लीकेशंस हो रहा है, सो दिस थिंग्स नीड टू बी अवॉइडेड। इसी में जस्टिस BN श्रीकृष्णा की कमेटी थी, अगर आपको याद होगा, करंट अफेयर्स आप रेगुलर पढ़ रहे हैं, तो इसमें BN श्रीकृष्णा की कमेटी थी जिसने 2018 में ये हाईलाइट किया था कि देयर इज नीड टू रिस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग पावर ऑफ द स्टेट टू कैरी आउट द सर्वेलेंस।
सर्वेलेंस का मतलब है किसी भी इंडिविजुअल के बारे में जानकारी लेना, बेसिकली इंफॉर्मेशन एक्ट के थ्रू। या गवर्नमेंट क्या करती है, अपने जो भी एक्ट्स है वो गवर्नमेंट के फेवर में काम करते हैं, राइट, दैट एक्ट एज अ टूल। बट फॉर अ हेल्दी डेमोक्रेसी इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट कि उस चीज़ों का मिसयूज ना किया जा सके। तो जो BN श्री कृष्णा कमेटी, उन्होंने ऑलरेडी कहा था कि जो स्टेट्स के पावर है, जो गवर्नमेंट्स के पावर है, उनको रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत है ताकि वो मिसयूज ना हो पाए। ये पॉइंट्स आप मेंस में अगर आंसर लिख रहे हैं तो प्लीज कोट दिस वुड डेफिनेटली गिव अ ह्यूज इम्पैक्ट टू द एग्जामिनर हु इज चेकिंग योर आंसर्स, राइट। सो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताता हूँ, आप अपने फोल्डर पॉइंट में या कोई आपने अगर कॉपी बनाई हुई है तो उसमें नोट कर ले। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे दिस वुड बी गिविंग अ ह्यूज इम्पैक्ट टू योर आंसर्स। मैं बात करें वे फॉरवर्ड की, जिस तरह से डेटा गवर्नेंस की बात की गई है, रिलेटिवली एक नया कॉन्सेप्ट है इंडिया में, और गवर्नमेंट को ये देखने की ज़रूरत है कि किस तरह से इसको बहुत ही सुनिश्चित, बहुत ही चैनबद्ध तरीके से, बहुत ही सिस्टमैटिक, नो टॉकिंग इट्स अबाउट मोर इम्प्लीमेंटेटिंग एंड मोर सस्टेनेबल, इट शुड बी एन इंक्रीमेंटल अप्रोच टू परसीव द प्रॉब्लम, राइट। और यहाँ पे ज़रूरी ये है कि देयर शुड बी रिफॉर्मिंग हाउ द गवर्नमेंट could deal itself with the citizen data। तो सिटीजन डेटा की प्राइवेसी और डेटा की जो रीयूजेज है उसके बारे में सरकार को बहुत ही चैनबद्ध तरीके से, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से ध्यान देने की ज़रूरत है। And talking about the last point, that is, it would also endanger the great trust in the government। जो डेटा की जो गवर्नेंस है उसमें पब्लिक की जो ट्रस्ट है वो बिल्ड करेगी। एंड अल्टीमेटली जो इम्पोर्टेंटली है, इट वुड अलाउ द डेवलपमेंट ऑफ स्टेट कैपेसिटी टू गवर्न द डेटा इकोसिस्टम। किसी चीज़ को इंडिया में द डेटा सर्विसेज अभी इंक्यूबेट हो रही है, तो यहाँ पे एक प्रॉपर लेजिस्लेशन विद द क्लैरिटी, विद द ट्रस्ट ऑफ द सिटीजन इज वेरी एसेंशियल। देन ओनली थिंग्स कैन ग्रो अप, राइट। तो पब्लिक को आप डिस्ट्रस्ट करके किसी भी चीज़, किसी की पॉलिसी को आगे बिल्ड नहीं कर पाओगे। इट विल अल्टीमेटली डिमिनिश, वो गिरेगा ही गिरेगा, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो पब्लिक की ट्रस्ट है दैट शुड बी इक्वली मेंटेन, और सारे स्टेक होल्डर्स के जो पॉइंट है उसको कंसिडर किया जाए। Now coming to the next topic, that is, government has banned some Chinese app, and the most popular is the PUBG, because if you are a gamer you must be aware. Although I understand the people who are preparing for civil services are not fond of playing games, but if you are, then you should completely avoid this Chinese app. See, दो तरह की चीज़ें होती हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर बात करें मिलिट्री एक्सरसाइज या फिजिकल डैमेज करने की बात है, एक होती है इकोनॉमिकल डैमेज। तो चाइना जैसे कंट्री को व्हाट वी कैन डू, बहुत ही छोटा इम्पैक्ट होगा ये, बट इकोनॉमिकली हमें उसे ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत है, राइट। मिलिट्री ऑपरेशंस जो है वो अपने तरफ तो होंगे, वहाँ पे इंसानी क्षति जो जो बेसिकली ह्यूमन लाइफ के लॉस ज़्यादा है, राइट। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि कुछ इस तरह का डिसीजन लिया जाए जहाँ पे एक्चुअल इम्पैक्ट दिखे चाइना को। So this is very important for your general studies paper 2 bilateral relation topic number 17, जहाँ पे जो आपके bilateral country topic number जो 18 है वहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी important हैं, और prelims के लिए भी ये चीज़ें important हैं। तो अभी रिसेंट में बॉर्डर टेंशन को देखते हुए जिस तरह से चाइना के साथ एक्सक्लेशन हुई है, बार बार बात होने के बावजूद भी वी आर नॉट कमिंग टू अ कंक्लूजन, और चाइना की तरफ से ऑलरेडी हर बार कुछ इस तरह का एक्सक्लेशन हो रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने चाइनीज़ ऐप बैन करने के लिए बातें कही हैं। आप भी बताएं कि कोई चीज़ का चाइनीज़ ऐप आप यूज़ कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं जिसको बंद किया जाना चाहिए सरकार की तरफ से, राइट। और अगर बात करें गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट हैज़ बैंडेड 118 एप्लीकेशंस। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो PIB के साइट पे जाएंगे, यू विल गेट द कंप्लीट PDF ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूँ, ऑल्दो दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नेम दिस, बट आई एम जस्ट रीडिंग इट आउट फास्टली। PUBG, WeChat वर्क, Baidu, Camcard, Rise of Kingdoms, Lost Cat Day, Alipay, these are some of the starting prejudicial sovereign integrity India, जो इंडिया के डिफेंस, स्टेट ऑफ सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करती है। This is the reason that government has cited, and because of which this apps has been completely been banned from the India, right? एंड दिस द एडिशनल ऐप। इससे पहले गवर्नमेंट ने 59 ऐप्स को ऑलरेडी बैन किया था, जिसमें मोस्ट पॉपुलर वाज द टिकटॉक एंड शेयर इट, राइट। तो ये सारी चीज़ों को बैन कर दी गई है। क्लब फैक्ट्री भी काफ़ी पॉपुलर ऐप हुआ करती थी इंडिया में, विच इज़ नाउ बैंडेड। सीन नाम की भी एक ब्रांड है जो कि कंप्लीटली बैंड हो चुकी है, राइट।
नाउ सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो इंटरेस्ट है, जो सेफ्टी कंसर्न है, उसको सबसे पहले ध्यान में रखा जाए। देश हित में सबसे पहले देश की सुरक्षा है, उसके बाद कोई चीज़ है, राइट। सो गवर्नमेंट हैज सेड दैट इट वाज मूव फॉरवर्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ द करोर्स ऑफ द इंडियन मोबाइल एंड इंटरनेट यूजर्स एंड द डिसीजन वाज टारगेट टू इंश्योर सेफ्टी, लोगों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, सिक्योरिटी एंड सोवरनिटी ऑफ द इंडियन साइबर स्पेस, राइट। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जिसको आईटी भी कहते हैं, दैट हैज सेड कि इट वुड इन्वोक पावर अंडर द सेक्शन 969A। तो ये भी आप ध्यान रखें कि इस चीज़ के अंदर ये की गई है। कई बार प्रीलिम्स में इस तरह के पॉइंट इंपॉर्टेंट होंगे। जो 69 ऑफ ए एक्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन एक्ट है, उसके तहत गवर्नमेंट ने ये रेलेवेंट इंफॉर्मेशन लिए हैं एंड द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोसीजर्स एंड सेफगार्ड फॉर ब्लॉकिंग द एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द पब्लिक रूल 2009। तो ये सारे चीज़ें, ये सारे जो प्रोविजंस है ऑलरेडी हमारे कानून में इसके बारे में जिक्र है। तो उस सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए गवर्नमेंट ने 118 बैंड को अभी बैंड किया, 118 ऐप हैज बीन बैंड रिसेंटली, और इससे पहले 59 बैंड को कर दिया गया। 59 पहले से बैंड है, राइट। नाउ कंप्लेन बात की गई थी कि मिसयूजेस को लेकर के बहुत सारे ऐसे ऐप्स थे जिनमें प्राइवेसी की काफ़ी इश्यूज थी। अगर आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं, मुझे ये पूरा विश्वास है कि 95% में से आप लोग प्राइवेसी पॉलिसी नहीं पढ़ते होंगे। अगर आप डिटेल में प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ें, प्राइवेसी पॉलिसी किसी भी ऐप की अगर आप वेबसाइट पर पढ़ रहे हैं, तो कम से कम 5 से 8 पेज की उनकी प्राइवेसी पॉलिसी होती है। बहुत डिटेल में लिखा होता है वो क्या क्या चीज़ आपका ले रहे हैं। लोग इतना पढ़ना बेसिकली सहूलियत नहीं समझते हैं, दे फाइंड कि ठीक है इट इज़ ओके, बट प्राइवेसी पॉलिसी को आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है इन चाइनीज़ ऐप की, राइट। तो कंप्लेन आई थी, मिनी कंप्लेन हैज़ बीन देयर विद द मिनिस्ट्री। उनके मुताबिक जो एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे बेसिकली ट्रांसमिटिंग यूज़र टू अनऑथोराइज्ड मैनर, सर्वर के लोकेशंस आउटसाइड इंडिया को एक्सेस किए जा रहे थे। और ये जो एडिशनल साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का, उन्होंने भी एक एग्जॉस्टिव रिकमेंडेशन दिया था गवर्नमेंट को कि इन ऐप्स को तुरंत ब्लॉक करना चाहिए। एक मैलिशियस ऐप है जो कि कंट्री के फेवर में नहीं है, सोवरनिटी और सिक्योरिटी दोनों के लिए खतरा है, राइट। जितने भी आप अगर क्लीन अप ऐप या इस तरह के कोई ऐप यूज़ करते हैं, जो डेटा क्लीन होती है, दैट इज़ एक्चुअली गोइंग टू समवेयर ऐप एल्स, राइट। आप कोई ऐप लॉकर यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे भी जो चीज़ ने आपने लॉक किया है, जिस चीज़ को आपने हाइड किया अपने कोई पर्सनल डेटा को, दैट इज़ अल्टीमेटली बीइंग शेयर्ड, राइट। तो इस तरह की प्राइवेसी पॉलिसी है, बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़े। अगर कोई आप थर्ड पार्टी चाइनीज़ ऐप अभी भी यूज़ कर रहे हैं जो अभी गवर्नमेंट ने बैन नहीं किया, मेक श्योर कि यू हैव रेड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन बिफोर यू यूज़ इट, राइट। नाउ द अदर टॉपिक दैट इज मिशन कर्मयोगी, आज के हिंदू के पेज में, ये नेशनल पेज में आपको मिल जाएगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव ली गई है गवर्नमेंट की तरफ से। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर जनरल स्टडीज पेपर 2 एंड इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर योर जनरल स्टडीज पेपर 4। एथिक्स में जो केस स्टडी है, एथिक्स के जो पेपर है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रीलिम्स में तो डायरेक्ट इस पे स्टेटमेंट 2 बेस्ड स्टेटमेंट सवाल बनेंगे। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है मिशन कर्मयोगी, एक नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन प्रोग्राम बनाई गई है। जो स्कीम होगी दैट वाज मेंट टू बी हैव अ कंप्रिहेंसिव पोस्ट रिक्रूटमेंट रिफॉर्म, किस तरह से जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है उसको किया जाए। जैसे अभी रिसेंट में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई है, उसी तरह सरकार ने जो हमारे सिविल सर्विसेज या जो नए कैपेसिटी बिल्डिंग है सिविल सर्विसेज को लेकर के, उनके प्रोग्राम की इवैल्यूएशन, उनके सर्विस टेन्योर की इवैल्यूएशन करके आगे बढ़ने की बात की गई, उन कैसे उसमें सुधार लाया जा सकता है, राइट। कुछ प्रोग्राम है दैट वुड बी ट्रांजिटिंग द रूल बेस्ड रोल, HR मैनेजमेंट को लेकर के, जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, वर्क एलोकेशन, सारी चीज़ों को ध्यान दी जाएगी। जो डोमेन नॉलेज है रिगार्डिंग द ट्रेनिंग विल फोकस ऑन द फंक्शनल एंड बिहेवियर कॉम्पिटेंस को देखा जाएगा, क्योंकि जो फंक्शन है एक सिविल सर्वेंटेंट के, चाहे वो IAS हैं, IPS हैं, IRS हैं, उनकी फंक्शनल और बिहेवियर कॉम्पिटेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, राइट। And the capacity building program would be delivering through the integrated online training program, जिसको iGOT कर्मयोगी डिजिटल प्लेटफॉर्म भी कहेंगे। गॉट मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट है उसको, वो या डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग भी DOPT भी रेगुलेट कर सकती है इसको। इसके बारे में क्लैरिटी अभी और आगे आ जाएगी। इवेंचुअली द सर्विस मैटर वुड बी कन्फर्मेशन आफ्टर द प्रोबेशन पीरियड, जो किसी भी इंडिविजुअल की जो प्रोबेशन पीरियड होता है, प्रोबेशन का मतलब होता है ट्रेनिंग पीरियड, राइट। डिप्लॉयमेंट, वर्क असाइनमेंट, नोटिफिकेशन ऑफ द वैकेंसीज टू बी इंटीग्रेटेड इन द प्रपोज्ड फ्रेमवर्क। अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक के बारे में एक मैं स्पेशल वीडियो बताऊं,
आपको बना करके कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करूं, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि वेदर आई शुड बी मेकिंग अ स्पेशल वीडियो ऑन द मिशन कर्मयोगी। प्राइम मिनिस्टर पब्लिक हेल्थ रिसोर्स काउंसिल बनाने की बात की गई है, जहां पे प्राइम मिनिस्टर पब्लिक रिसोर्स काउंसिल बनाई जाएगी, दैट वुड बी सेटअप एज अ एपिक्स बॉडी to direct the reform and which will have a autonomous capacity building commission to be established, और क्या क्या चीज़ों को मैनेज करेगी, टू रिफॉर्म सिस्टम एंड हार्मोनाइज ट्रेनिंग स्टैंडर्ड अक्रॉस द कंट्री। तो ये काउंसिल होगी जो सारी चीज़ों को रेगुलेट करेगी, रेगुलेटरी बॉडी होगी एक तरह से। ये कवरेज की अगर बात करूँ, कौन कौन से एम्प्लॉय इसके अंदर कवर होंगे, ऑलमोस्ट 46 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के ऐसे एम्प्लॉयज़ है जो इनको कवर किया जाएगा, और जो आउटले रखी गई है अमाउंट की, दैट इज़ 510 करोड़ रुपीज फॉर ओवर द 5 ईयर अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। और जो एनुअल सब्सक्रिप्शन होगी इसके लिए, दैट वुड बी 431 रुपीज चार्ज विद द पर सिविल सर्वर, एनुअल चार्जेस है, दिस इज द एनुअल चार्ज, राइट। तो अब ये पॉइंट भी ध्यान रखना, कई बार प्रीलिम्स एग्जाम में ये पूछे जाएंगे कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, बट नहीं, एनुअल चार्जेस इसमें मैंडेटरी है। Now coming to the other topic, that is COVID-19 virus detection using the spectrometer, राइट। कुछ स्पेक्ट्रोमीटर के साथ एक नई टेक्नोलॉजी है जहाँ पे कोविड-19 को टेक्सिंग को लेकर के चीज़ें इवॉल्व हुई है। सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर जनरल स्टडीज़ पेपर 3 हेल्थ के बारे में, जहाँ बातें की गई है, और स्पेक्ट्रोमीटर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नाउ लेटेस्ट कोविड-19 टेस्टिंग को अगर देखें, वहाँ पे जो रिसर्चर्स ने, जो दिल्ली बेस्ड रिसर्चर हैं, जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल ने नई टेक्नोलॉजी, जो बेसिकली स्पेक्ट्रोमीटर की जो टेक्नोलॉजी है, उसके साथ टेस्टिंग को काफ़ी एफिशिएंट बताया है। और ये इसकी जो सेंसिटिविटी है 95% होगी, और 100% ऑफ द स्पेसिफिसिटी विद रिस्पेक्ट टू द RT-PCR टेस्ट, जो हमारी रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, रैपिड टेस्ट जिसको भी कहते हैं, उससे भी एक एफिशिएंट है, 95 to 98% एफिशिएंटली काम करेगी। सो हाउ द टेस्ट वुड बी कंडक्टेड, क्या किस तरह से टेस्ट को लिया जाएगा। सो जो न्यू अप्रोच है, दैट वुड बी डायरेक्टली डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ द वायरस फ्रॉम द नेजो ओरोफेगनल स्वैप्स, जो हमारे नेजो ओरोफेगनल स्वैप्स हैं, नेजल स्वैप्स बेसिकली होते हैं, जो उनके थ्रू ये लिया जाएगा। द कलेक्शन ऑफ द डेटा, जो वायरस के जो सैंपल है वो यहाँ से लिए जाएंगे, एंड द डिटेक्शन ऑफ द वायरस टेक प्लेस विद इन 3 मिनट्स। तो ऐसा कहा गया है कि 3 मिनट के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें, इसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वेदर द वायरस इज देयर और नॉट। बट द एंटायर प्रोसेस है, इट वुड टेक 30 मिनट्स, क्योंकि सैंपल कलेक्शन है, अगेन इट वुड बी देयर। सो इन जनरल इट वुड टेक 30 मिनट्स, बट जो रिजल्ट आफ्टर पुटिंग इनटू द स्पेक्ट्रोमीटर 3 मिनट्स के अंदर रिजल्ट आ जाएंगे। किस तरह से स्पेक्ट्रोमीटर काम करेगी अगर बताएं, न्यू मेथडोलॉजी जो है, इट वुड डिटेक्ट द वायरस विदाउट एम्पलीफाइंग द RNA। पहले क्या होता था, RNA को एम्पलीफाई किया जाता था पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में, जैसे PCR के केस में होता था, इसको एम्पलीफाई करके फिर पढ़ते थे। नाउ ये जो नई मेथड है, दैट वुड बी डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ 2 पेप्टाइड्स यूनिक, जो SARS-CoV-2 की जो है उसको देखेगी, एंड इट वुड बी अनदर थिंग्स दैट वुड बी इवेलुएटेड। सेंसिटिविटी की बात करें 90.4% है कंपेयर टू द PCR टेस्ट, वेर इट हैज़ हाई, जो स्ट्रेंजिनिटी है वो उसकी काफ़ी हाई है कंपेयर टू जो स्पेक्ट्रोमीटर है। बट वॉट इट मीन दैट द रेशियो ऑफ सिग्नल इन द नॉइज इज 10-fold। मास स्पेक्ट्रोमीटर इज एक्सपेंसिव, नॉट इट कॉस्टिंग, जो कॉस्ट आएगी इसकी 10 करीबन 100 रुपीज़ के आसपास इसकी कॉस्टिंग आने वाली है एक टेस्ट को लेकर के। अभी जो PCR के टेस्ट है वो भी काफ़ी कम है, 700 to 500 के बीच में वेरी करती है। इससे पहले ये दोनों चीज़ें से पहले 1000 रुपये या फिर 3000 रुपये टेस्टिंग हुआ करती थी, राइट। सो इट वुड बी चीपर देन द जो PCR टेस्ट है उससे चीप होगी। मशीन अपने आप में महंगी, बट ओवरऑल इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, तो एक इंडिविजुअल को 100 रुपये का खर्च आएगा। एंड मेनी रिसर्च लैब हैव बीन यूजिंग द मास स्पेक्ट्रोमीटर। मैं आपको इसका पिक्चर दिखा देता हूँ, ये किस तरह से दिखती है। दिस इज़ द मास स्पेक्ट्रोमीटर, और इसमें ये सैम्पल्स कलेक्शन के कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, उसके बाद ये रिजल्ट आपको देती है कि क्या एग्जैक्टली किस तरह से वायरस है। और इसको बेसिकली जो RNA है उसको एम्पलीफाई भी नहीं करना पड़ता, विदाउट एम्पलीफाइंग इट इज़ वर्किंग। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखें, इट डज नॉट एम्पलीफाई द RNA। नाउ द लास्ट टॉपिक इज फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस, ये आज के एडिटोरियल में है, जिसको PD आचार्य ने लिखा है, पार्लियामेंट्री कमिटीज कॉन्फ्लिक्ट एंड पार्लियामेंट्री कन्वेंशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके जनरल स्टडीज़ पेपर 2 के लिए।
और जिस तरह से फेसबुक को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई है, फेसबुक के लोगों को बुलाई गई है इंडिया में, राइट, और काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही थी क्योंकि उन्होंने जो हेट स्पीच थी बीजेपी की, उसके कुछ पेजेस को नो दे हैव फेवर्ड, कुछ ऐसे किए हैं, तो उसको लेकर के शशि थरूर की जो कमेटी है, दे हैव आस्क्ड पीपल टू नो टू रिप्रेजेंट देयर टू सेंड द रिप्रेजेंटेशन और अपनी जो रीजन्स है वो साइड करने के लिए। तो रिसेंटली एक ओपन कॉन्फ्रेंटेशन हुई है बिटवीन द मेंबर एंड द चेयरमैन, दैट हैज़ बीन रिपोर्टेड। तो ये जिस कंटेक्स्ट में बात की मैं आपको वो बता रहा हूँ, एडिटोरियल में जो हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए पार्लियामेंट्री कमिटीज़ की फंक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हमने ये न्यूज़ ऑलरेडी डिस्कस किया है कि क्यों इसको बुलाई गई है, तो मैं रिपीट कर दे रहा हूँ आपके लिए कि जो फेसबुक ऐसा एलिज किया गया कि वो बीजेपी रूल्स के जो पोस्ट थे अलग अलग स्टेट से या अलग अलग लीडर की तरफ से, उनको कहीं ना कहीं कुछ हद तक प्रमोट करने की कोशिश की है। तो एक ओपन कॉन्फ्लिक्ट जो दिखी है पार्लियामेंट्री कमिटीज़ में, तो एक अनहेल्दी प्रैक्टिस है जहाँ पे इट नॉट ओनली डिस्ट्रॉय द पर्पस एंड एसेंशियल ऑफ द डिफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटीज़। एक ओपन कन्फ्रंटेशन हुआ बिटवीन द चेयरमैन एंड द आईटी कमिटीज। आईटी कमिटी इज हेडेड, जो पार्लियामेंट्री कमिटी, इट इज हेडेड बाय शशि थरूर। मैं आपको नाम इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि कई बार एग्जाम में इस तरह की चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और इफ यू राइटिंग एन मेन्स एग्जामिनेशन देन यू कैन डेफिनेटली राइट, देयर इज नो इशू अबाउट दैट, इफ यू नो यू कैन राइट। और जो सीनियर बीजेपी लीडर हैं कमेटी के, निशिकांत दुबे, इन दोनों के बीच में कुछ इस तरह की बातें हुई है दैट इज़ नॉट इन द स्पिरिट ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी। एक बहुत ही अनहेल्दी कन्वेंशन है और ये जो प्रैक्टिस की गई है दैट इज समवेयर अगेंस्ट द पार्लियामेंट्री कमिटीज़। पर्पस क्या है पार्लियामेंट्री कमेटी की, मेन पर्पस समझने की जरूरत है, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों ये कंट्रोवर्सी अराइज हुई है। जो पार्लियामेंट्री कमेटी है दैट वाज क्रिएटेड बाय द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट टू स्क्रूटनाइज द गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ की, जो गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो फंड एलोकेट किया या जो मिनिस्ट्री काम कर रही है, गवर्नमेंट ने जो चीज़ों को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की है वो कैसे चल रहे हैं, राइट। तो एक तरह की सर्वेलेंस बॉडी होती है पार्लियामेंट्री कमेटी। और जो पार्लियामेंट्री कमेटी है एक कन्वेंशन के हिसाब से काम करती है, जिसकी जो फंक्शनिंग है वो किसी भी पार्टी से ऊपर होती है। सो इट वर्क अंडर द नॉन पार्टी बेसिस, राइट। तो ये इसकी सबसे जो कोर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट वर्क अंडर द एज अ नॉन पार्टी फंक्शन बेसिस। और जो प्रैक्टिस होती है इट हैज़ बीन टू स्ट्रेंथन द कमिटी। इसी वजह से पार्लियामेंट्री कमेटी काफ़ी पावरफुल और अनबाइस्ड मानी जाती है। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो पार्लियामेंट की फंक्शन है दैट इन रियल सेंस गो थ्रू दिस कमिटी, इसी वजह से। और जो फाइंडिंग है यहाँ पे, आफ्टर द फाइंडिंग द रिपोर्ट ऑफ द पर्टिकुलर मैटर, द रिकमेंडेशन इज सेंड टू द गवर्नमेंट। जो भी कमेटी फाइंडिंग देती है वो गवर्नमेंट को सेंड किया जाता है। गवर्नमेंट के ऊपर है कि अगर वो उसकी डायरेक्टरी को माने या ना माने, ये मैंडेटरी नहीं होती है, राइट। एंड नेवरदलेस गवर्नमेंट गिव ग्रेट इंपॉर्टेंस डू टू दिस रिकमेंडेशन। ऐसा नहीं है सरकार उसको सीधे से खारिज कर देती, दे टेक द इम्पॉर्टेंस ऑफ द रिकमेंडेशन। जो भी उनकी बातें हैं उनको कंसिडर किया जाता है, उनको ध्यानपूर्वक समझा जाता है मिनिस्ट्री के द्वारा, एंड इट टेक द व्यूज टू इम्प्लीमेंट इट प्रैक्टिकली एज मच एज पॉसिबल। नाउ अगर मैंडेट की बात करूं कि क्या मैंडेट है कमिटीज़ की, तो दीज आर द वैलिड रीज़न कि वाई पार्लियामेंट्री कमेटी वर्क इन द नॉन पार्टिसन मैनर। किसी भी पक्ष के तौर पे काम नहीं करती, नॉन पार्टी, एकदम ट्रांसपेरेंट मैनर में, न्यूट्रल बायस्ड, एकदम अनबायस्ड इनका व्यूज़ होता है, राइट। एंड दे आर सेट अप अंडर द हाउस ऑफ टू अनअर्थ द फैक्ट ऑफ द इशूज़ ऑफ द पब्लिक इंपॉर्टेंट। ऐसी कोई भी बातें जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए हैं उन सारी चीज़ों को कंसिडर की जाती है पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा सुओ मोटो, right, and the rules and the practice have strengthened to fortify the convention। जिस तरह से चीज़ें हैं जो रूल बनी है उसको, चीज़ों को जो कन्वेंशन है उसको और स्ट्रेंथन किया जाए हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए, ये कोशिश होती है पार्लियामेंट्री कमिटीज़ की, राइट। एंड द रूल डज नॉट परमिट अ मिनिस्टर टू बी द मेंबर ऑफ द कमिटी। यह आप बिल्कुल ध्यान रख ले, पार्लियामेंट्री कमिटी के बारे में डायरेक्टली 2 स्टेटमेंट सवाल प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे इस बार भी, राइट। तो इट डज नॉट परमिट द मिनिस्टर टू बी द मेंबर। कोई भी मिनिस्टर जो है वो मेंबर नहीं बन सकते हैं। और बाय प्रैक्टिस अ मिनिस्टर इज नॉट अलाउड टू अपीयर एज अ विटनेस टू गिव इवन द एविडेंस बिफोर द कमिटी। वो कुछ एविडेंस देने के लिए किसी चीज़ के लिए भी उनको बुलाया नहीं जा सकता है। दे आर कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड, right, and only senior most officer of the concerned department are appear before the committee। जो senior most officers होते हैं, अंडर सेक्रेटरी लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं, सिर्फ उनको ही बुलाया जाता है, right। and similarly the proceeding are confidential and they are not permitted to make public। जो भी इंफॉर्मेशंस हैं, जो भी कमिटी की जो मीटिंग्स हुई है वो बाहर लीक नहीं करनी होती, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होती है इनके सारे रिकमेंडेशंस। नाउ वे फॉरवर्ड की अगर बात करें, अगर आप इसका आंसर लिखते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वे फॉरवर्ड बताएं।
तो पार्लियामेंट्री कमेटी हैज़ बीन फॉलोइंग अ सेंसिबल एंड हेल्दी ट्रेडिशन, जो कन्वेंशन है उसको उन्होंने फॉलो किया है ताकि जो इंस्टीट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट है, जो हमारी डेमोक्रेसी की जो कोर एसेंस है, जो फैब्रिक ऑफ डेमोक्रेसी है, उसको बरकरार रखा जा सके, उसको स्ट्रेंथन किया जा सके, राइट. एंड एन ओपन कन्फ्रंटेशन बिटवीन द मेंबर एंड द चेयरमैन ऑफ the parliamentary committee is definitely an unhealthy practice that should be completely avoided. That is against the spirit of the healthy democracy, right, which is not only destroy the purpose of the essentiality and effective functioning of the parliamentary committees. So these 2 points are very relevant and very important. Now बढ़ते हैं अपने आंसर्स की तरफ. जो कल के सवाल थे उसके आंसर्स मैं आपको बताऊंगा. So the first question, the answer here is the correct option is C, and the explanation goes like this कि जो Ramon Magsaysay award है, that is the highest Asian honor and it was awarded annually to individual organization from Asia region to their altruistic and philanthropic services, right. So the source of reference here is PIB. Second question, ये जो correct option है that is again C. Basically अगर बात करूँ, this is not C exactly, this is basically this is C, this would be B, right. So the correct answer here is B. So Pamshana is a second major type of architecture form of Nagara, and this built a broader shortage of lantana roof compared to the several slabs, and it is one of the like sharply in the towers. You can pause this video and you can read the explanation in detail. और जो second statement है वो correct है. The Pamshana roof does not curve inward, instead they slope outward and straight incline. So this is from the NCERT of Indian Art, जो फाइन आर्ट की बुक है, उसमें आपको सारी चीज़ें डिटेल में मिल जाएंगी. Now let's move to our today's MCQs question of the day. So the first question is from the static portion of Indian economy. Consider the following statement with regards to GDP deflator. The GDP deflator measure the difference between the real GDP and the nominal GDP, right? Recently, the NSO has released the GDP data. तो उसके लेकर के आपको कुछ important ये सारे points पते होने चाहिए ताकि आप prelims examination में ये सारे points को cover कर पाओ. Now, nominal GDP include inflation with the real GDP and does not include the inflation. So whatever is the correct answer, you have to choose the answer A, B, C या फिर D. तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने आंसर हमें ज़रूर बताएं. Now the second question is from the Indian polity. Consider the following statement with regards to convention related to the appointment of the office of governor. So he should not belong to the state where he is appointed, and while appointing the governor, president is not required to consult the chief minister of the state concerned. So this is the two important point from the governor office, and it is very easy, relatively very easy if you have read Lakshmikant well, right. तो आपके लिए काफ़ी आसान होगा. आप हमें A, B, C या फिर D आंसर बता सकते हैं. If you have any other information which you would like to share, आप उसको comment section में ज़रूर लिख करके बताएं, right. So you can write your answer there. And if you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.